Welcome to my class, students. We are doing English grammar and this is the topic is conjunction, and we are doing session 3. In this we are doing subordinating types. पहले आपने देखा what is conjunction, फिर आपने coordinating देखा, अब देखो subordinating types and its uses. तो conjunction कहते कैसे है? As this is session 3, conjunction कहते किसे? Conjunctions helps you to link word with word, phrases with phrases, clauses with clauses, and it avoid the mess of multiple short sentences and it makes an elegant complex sentence. तो conjunctions बहुत important है और यहाँ subordinating conjunctions आप कैसे use कर सकते हो? Let's see. There are 3 different kinds of conjunctions, as you know: coordinating, subordinating and correlative, each serving its own distinct purpose but all working to bring words together. A subordinating conjunction always introduces a dependent clause tying it to an independent clause. जब एक dependent clause को आप independent clause के साथ जब जोड़ते हो तो subordinating clause का use करते हो. There are lots of subordinating conjunctions, but the most common ones are after, although, as, because, before, how, if, once, since, then, that, though, until, when, where, whether and while. तो ये बहुत ही कॉमन है. आप जब लिटरेचर सेशन में जाओगे ऐप के थ्रू आप देखोगे सारे सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस का यूज हुआ है और कैसे डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ा गया है. राइटर ने बड़ी खूबसूरती से, हर एक राइटर ने इनका यूज किया है इंग्लिश अपने स्टोरीज में, आर्टिकल्स में. When a clause follows this conjunction, it becomes a subordinate clause which needs a main clause to make a complete sentence. तो ये सारे वर्ड्स को जब हम किसी भी सेंटेंस में बीच पहले लगाएंगे तो वो एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा, जिसको हम मेन क्लॉज के साथ जोड़ेंगे तो ही इसका एक पूरा मीनिंग बनेगा, एक पूरा कंप्लीट सेंस बनेगा. तो when you are using these words, so you are making a dependent clause and you need an independent clause so that you can join them both and make a complete sense. Now, subordinating conjunctions are essential parts of complex sentence. मैंने बोला ना कि conjunctions क्या करता है? It avoids multiple short sentences to make a one elegant complex sentence. तो subordinating conjunctions ही है जो complex sentence बनाता है. It includes at least 2 clauses. ये 2 clauses का at least use करता है. One of them being main clause and the other being subordinate या dependent clause. A subordinate conjunction performs 2 functions within a sentence. तो ये 2 functions sentence में लाता है, join करता है. कैसे? First, it illustrates the importance of the independent clause. ये बताता है independent clause की importance क्या है. And it provides a transition between 2 ideas in the same sentence. और एक ही सेंटेंस में 2 डिफरेंट आइडियाज, ट्रांजिशन, पूरा टाइम लीप या पूरा थॉट चेंज कैसे हम ला सकते हैं, वो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही लाते हैं. द ट्रांजिशन ऑलवेज इंडिकेट्स अ प्लेस, टाइम और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो ट्रांजिशन जो बदलाव अचानक से आता है वो या तो जगह का आता है या फिर टाइम का आता है या कारण का आता है या इफेक्ट का आता है रिलेशनशिप में. फॉर एग्जाम्पल, आई लुक्ड इन द क्ले बॉल. मैंने क्ले बॉल में देखा. वेयर माई ब्रदर ऑफन हाइड्स हिज टॉफीज. कौन से क्ले बॉल में देखा? जहां मेरा ब्रदर अपने टॉफीज को हाइड करता है. 2 चीज है, देखो ये अलग है. लुक्ड इन द क्ले बॉल और वेयर जोड़ के हमने इसको डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया. वेयर माई ब्रदर ऑफन हाइड्स हिज टॉफीज. तो जब तक मेन क्लॉज के साथ हम इसको नहीं जोड़ेंगे कंप्लीट सेंस नहीं बनेगा. तो मैंने क्ले बॉल में क्यों देखा? क्योंकि मेरा जो भाई है वही अपनी टॉफीज छुपाता है. Now, since subordinate clauses are adverbial, they may appear at the beginning or end of a complex sentence. तो ये adverb की तरह काम करता है, तो या तो स्टार्टिंग में आता है या एंड में आता है सेंटेंस के. तो टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या क्या है? हम टाइम देखते हैं क्योंकि आपको पता है ट्रांजिशन लाता है टाइम, प्लेस, कॉज, इफेक्ट का. तो आफ्टर, एज सुन एज, बिफोर, वन, सिंस, अंटिल, व्हेन, व्हाइल,
जब ये वर्ड हम जोड़ते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज बनता है, उसको हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। तो ये टाइम सजेस्ट करता है। मैनर, एज इफ, एज दो, लाइक। कॉज एंड इफेक्ट, ऑल्दो, दो, वेयरएज, व्हाइल, एक्सेप्ट, दैट। कंडीशन, बिकॉज, इन दैट, नाउ दैट, सिंस, सो दैट, इफ, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस। तो ये सारे वर्ड जब आप जोड़ते हो तो एक ट्रांजिशन ऑफ आपको आइडियाज आप प्रेजेंट कर सकते हो एक ही सेंटेंस में। पर्पस, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, कंपैरिजन, एज, मोर देन, लेस देन। In contrast to coordinating conjunctions, a subordinate conjunction can often come first in a sentence. तो आपने देखा coordinating conjunction जो होता है वो बीच में आता है सेंटेंस के, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें फर्स्ट में भी आ सकता है सेंटेंस के। दिस इज ड्यू सिंपली टू द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। अभी तक मैंने जितने रिलेशनशिप आपको बताया, टाइम, प्लेस, कॉज एंड इफेक्ट, कंडीशन, तो उस क्या रिलेशनशिप है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच का, उसको ध्यान में रख के हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते। तो ये फर्स्ट में भी आ सकता है सेंटेंस के। नाउ वन वर्ड कंजंक्शंस क्या है? आफ्टर। आफ्टर वी हैड टॉक्ड, राइट, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया क्योंकि हमने आफ्टर जोड़ दिया। आई रोट डाउन व्हाट वी हैड डिसाइडेड, तो आई रोट डाउन व्हाट वी हैड डिसाइडेड अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और आफ्टर वी हैड टॉक, बात करने के बाद मैंने क्या किया, वो सारे नोट डाउन कर लिए जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे। Now, if a subordinate clause appears at the beginning of a complex sentence, it must be separated from the independent clause by a comma. तो अगर beginning में आता है subordinate conjunction तो हम comma लगाते हैं इसको, और independent clauses को separate करते हैं। Example, after I finished my homework, यहाँ देखो हमने comma लगाया, I went to bed, फिर independent clause लिखा। If a subordinate clause appears after the independent clause in compound sentence, no comma is needed. अगर कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है और बीच में आ रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आ रहा है तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। आई वेंट टू बेड आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, तो यहाँ पे देखो कॉमा नहीं है। इफ द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वेयर एज, दो, अगर ये सारे वर्ड्स है वेयर एज, दो, ऑल्दो, और, इवन दो, तो अब कॉमा इज नीडेड टू शो सेपरेशन बिटवीन द टू क्लॉजेज। तो अगर हम ये सारे वर्ड्स यूज करें तो कॉमा हमें लगाना जरूरी है। इवन दो शी हैड सीए फाइनल पेपर, कॉमा, टिशा वेंट टू एन एक्सकर्शन विद फ्रेंड्स। तो यहाँ देखो दो थॉट है, ट्रांजिशन है, सीए फाइनल पेपर है, फिर भी जो है टिशा जो है एक्सकर्शन में गई है, तो हमने यहाँ पर कॉमा लगाया है। कंजंक्शन विथ मोर देन वन वर्ड, as long as, ये देखो more than one word है, as soon as, except that, in order, right, that, so as to, provided that. तो as long as the waves are high enough, we can go surfing. Provided that he pays a fine, he will not have to attend the seminar. तो इस तरह से आपने देखा two word conjunction, more than one word, और ये एक ही sentence में दोनों लिखने हैं। कंजंक्शन दैट कैन बी मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स, तो ये देखो आप जस्ट व्हेन, एवर सिंस, ओनली इफ, जस्ट एज, सिंपल, बिकॉज, राइट बिफोर, दीज आर द कंजंक्शंस दैट वी कैन मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स। एग्जांपल देखो, द फोन रैंग जस्ट व्हेन आई हैड लॉक्ड माय हाउस, तो एक साथ हमने जस्ट व्हेन लिखा। आई हैव बीन अफ्रेड टू स्विम एवर सिंस आई वाज यंग, तो हमने क्या किया, एड कंजंक्शंस को हमने एज एन एडवर्ब भी हम यूज यहाँ कर रहे हैं। Now some exercise है। The basement flooded, we spent all day cleaning up, तो तीन वर्ड है, after, although, before, even if, तो हम क्या करेंगे, after the basement flooded, we spent all day cleaning up. I don't want to go to the movies, I hate the darkness inside, तो क्यों, although, because, whenever, so that, तो because आएगा क्योंकि मुझे डार्कनेस से नफरत है जो कि अंदर रहती है, अंधेरा जो रहता है। I paid Larry, garden design work is top notch, तो whose garden design work is top notch. Spring arrives, we have to be prepared for more snow, तो
although although spring arrives, we have to be prepared for, no, here until spring arrives, जब तक spring नहीं आती, we have to be prepared for more snow. Now answer देखो, after the basement flooded, we spent all day cleaning up. I don't want to go to the movies because I hate the darkness side. I paid Larry, whose garden design work is top notch. Until spring arrives, we have to be prepared for more show. So what have we learned today? We have learned subordinating conjunctions. We have learned that this is the only conjunction that helps to make complex sentences. So it's very important. Go through it again and again. All the words that I have given you. So you just find it in the literature sessions that you have in the app, and you go there and you find all the subordinate conjunctions there, so that you can understand how this has been used. So in the next session I shall be here with one more type of conjunctions. Till then, have a good revision. Thank you.